DG sir, Director sir, and Naz ma'am to kindly take their places on the dais, please. Now I would request DG sir to kindly welcome our guests today, and I would request you sir to please. Now I would request Director General sir to please present a bouquet to Dr. Pradeep Singh. Sir, I would again request you to please present a bouquet to Mr. Shailendra Bahadur Singh. Nazman to please present a bouquet to Dr. Bhargav. Sir. Come down. Please join our other guests on the dais. And I would request Director sir to please welcome him with a bouquet. Sir, please. Learned members of the faculty, members of the staff, and other respected dignitaries. A very good afternoon to all of you. My name is Yusuf Mehdi. I'm an assistant professor in the Department of English. And I would like to welcome you all on behalf of NIET to today's event. NIET has established itself as a center of excellence and a leader in the academic arena. It is the first ever private educational institution in Uttar Pradesh to have received autonomous status by the University Grants Commission. In fact, NIET is the only institute in Uttar Pradesh which has been recognized by all the three ranking and accrediting government organizations like National Board of Accreditation, National Assessment, and providing quality education to the students. The institute also actively promotes social causes. NIET firmly believes in the vision of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, and supports his initiative called Mission Shakti, which has been launched to spread awareness among the people and to sensitize the people towards eradicating evils of gender discrimination and crimes against women. The NIET family feels proud to be a part of this very noble cause. Women empowerment and women's safety have certainly been very important issues for a long time. Things have indeed improved, but still we have a long way to go. Today we have with us very senior officials who have been working for the cause for a long time. They will be further sharing the details of the campaign and the expectations of the government from the common people. Now, first I would request Director Sir to please formally welcome our guests and dignitaries. Please, sir. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुषमा सिंह, वाइस चेयरपर्सन यूपी स्टेट वुमेन कमीशन, मिस्टर अनिल कुमार सिंह, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जीबी नगर, डॉक्टर शिरीष जैन, नोडल ऑफिसर पीसी एंड पीएनडीटी से जीबी नगर, मिस्टर अतुल सोनी, डीपीओ जीबी नगर, डायरेक्टर जनरल
Mr. Praveen Soneja ji, Director Pharmacy Avijit Mazumdar ji, Director Project and Planning प्रवीण पचौरी जी, गजाला नाज मैडम, अन्य अतिथिगण और सभी फैकल्टी मेंबर्स। मैं इस NIT के सभागार में सभी अतिथियों और श्रोताओं का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक 9 दिन का एक प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं, दैट इज एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इशू है, जिसकी अवेयरनेस सभी लोगों में करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी उपलक्ष्य में NIT ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगले 9 या 10 दिनों के लिए हम हर रोज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ऑनलाइन मोड के थ्रू कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है और NIT को सिलेक्ट किया इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम के थ्रू जो भी अवेयरनेस हम सब में लानी है, वो एक अवेयरनेस सब में आएगी। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। Women Grievance Redressal Cell, NIT, and convener of the campaign at NIT to please apprise us about the purpose and objectives of the mission. Please, ma'am. Thank you, Yusuf. These directors here, the doctors who have come as a guest, and all my dear faculty members from NIT. Warm greetings to all of you. It is indeed an important day for us here at NIT. Members of the GB Nagar administration have joined hands with us to take the fight against all forms of gender injustice forward. We welcome you and hope that we will collaborate in the future too. Today's event is one in a series being held in our state to raise awareness against issues like female feticide, infanticide, violence against women, child marriage, dowry, domestic violence, and other similar evils prevalent in society. We at NIT, from the forum of our Women Empowerment Cell, have been organizing webinars, talk shows, skits, competitions, signature campaigns, pledges to raise awareness and bring about gender parity. These events at NIT, through our Institute's Innovation Cell IIC, is being streamed on social media platforms every day, like YouTube, Twitter, and Facebook, which has the potential to reach a very large audience, and we have been sharing this with the administration of GB Nagar and our university, AKTU. NIT is a safe campus for girls and women. The management, faculty, and staff strive to make it so. Our Women Empowerment Cell takes care to keep organizing events to encourage girls in order to empower themselves by being self-reliant and economically independent. NIT's Women Grievances Redressal Cell keeps an eye on any untoward incident that may befall. Our students, boys and girls, are taught to become responsible citizens, respectful towards the rights of others. Our chairperson, Dr. Sarojini Agarwal, MLC BJP, and a gynecologist, runs an NGO Nari Shakti, which holds training in self-defense for our girl students. I must mention that we always have the wholehearted support of our management in the cause of women welfare. Change never happens overnight. It takes years to change the mindset
of society. What we are trying to achieve through our efforts today will have a far-reaching impact. I'm sure of that. I would like to end by quoting a few lines from a poem, Making Waves, by a writer, Sonali Pak. She says, a stone is thrown into a calm lake, and the stone makes waves, spreading, reaching to the far side. Let us throw stones into the deadly calm of the lake that is our world, no matter how small is the wave. The stone brings about awakening. The wave is a movement, and the movement spreads when all of us, standing together on all sides around the lake, keep throwing our little stones. The wave will never cease till the whole lake starts bubbling with life. And with that, those words of hope that we will cause a lot of ripple around us, I'm ending. Thank you. Thank you, ma'am, for elaborating on the purpose of this campaign. The Mission Shakti is spread through 6 months, wherein different issues related to women's safety and empowerment will be dealt with every month. One of the very important acts in the direction of empowering women is the PC-PNDT Act 1994, which prevents prenatal determination of sex of the fetus, subsequently preventing female feticide. The students of biotechnology at NIET attempted to spread awareness about the same through the enactment of a play. The play was enacted online following proper social distancing. I would like you to have a look at the attempt of our students, please. This is just a part of the play the students enacted. Can we have play, please? करते हैं उसी के अनुसार आज देवी कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। जब पार्वती जी काफी समय तक सूर्य के गर्भ में रहेगी तब माता कुष्मांडा अवतरित हुई थी। इन्हें अष्टभुजावी कहा जाता है। इनके इस रामायण की रचना करने वाली माता को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मत करो क्योंकि वो औरत है, पर इसलिए करो क्योंकि वो मर्द नहीं है। सुनिए, सुनिए। क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? मैं तुम्हारी नहीं जा रही। अरे आप पापा और माँ बनी पूरा घर सर से उठा रहे। माँ बाबा, जो आपकी बहू है, वो बेच गया। तो कोई ये नहीं था, वाली बात का नहीं, जब घर को उसका किया नहीं है। या तो आपका कभी आपका तब तक खुशखबरी नहीं मानूंगी जब तक मेरी गोद में पोता नहीं आएगा, तभी मानूंगी खुशखबरी। जाओ जाओ जल्दी जांच कराओ, जाओ खुशखबरी लाओ। हेलो डॉक्टर, हेलो संजीव जी, तो ये कैसे आपके अपने इतने सालों बाद? काम खाते हैं। Preconception and prenatal diagnostic technique, that is CCPNDT Act of 1994, is an act of Parliament of India enacted before and are banned completely. हेलो संजीव बेटा, कहाँ है तू? हाँ, बोलो क्या बात है? तेरी डॉक्टर से बात हुई क्या? हाँ हाँ, बात तो हुई थी। हत्या जैसे आपका भागीदार बताया, कहीं उन्होंने सुन लिया तो मैं क्या करूँगी? नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं आप ही का बच्चा हूँ, मुझे भी बुलाने आना है, मुझे भी दूसरे बच्चे की तरफ खेलना है, कूदना है, करना है। आपकी गोद में सर रख के रोना है। हाँ मिला तो था।
ये लड़की है। क्या कैसे बेटी? लगता था मुझे बेटी नहीं चाहिए। मुझे बेटा चाहिए। अब मुश्किल नहीं होगा, अब मुश्किल नहीं होगा। मैं कुछ नहीं। मैं गौरी, मैं काली, मैं चंद्रगंगा, मैं अन्नपूर्णा, मैं देवी। मैंने अपने सभी रिश्तों को मिला करके बेटी जैसा रत्न लगाया और तुम्हें मेरा अपमान किया। अरे बेटी की वापस नहीं है ना, क्या करती है बेटी? पर बेटा मत बढ़ाता है। तो करके कुछ जिसे चला सकूंगा तो पूरे आंगन में खड़ा करेंगे। PCPNDT एक्ट 1994 के तहत नई जांच करवाना एक अपराध है। इसे करवाने वाले लोगों को 3 महीने की सजा तथा हजारों का जुर्माना भरना पड़ता है। यही नहीं, जो डॉक्टर ये जांच करते हैं उनको उनका लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाता है। और ये कितना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर वालों के पारिवारिक दबाव में आगे ये कदम उठाए। काश उसमें ये other doctors, and in spite of busy schedule, I know your and our respected Dr. Bhargav is very special thanks to this NIET institution as a whole, not to anyone in particular, but the NIET institution where all the management, all the senior faculties and all the chairman and directors who have given us the opportunity and to tell us something about the PCPNDT and to have an involvement in this Mission Shakti Abhiyan. And at last but not at the least, the children of NIET who have just given this presentation, a very short depiction, but that was very effective. Well, in fact, after such a wonderful depiction, there is no word to say anymore, and no lecture regulation that is required. Still, I will just like to cover few of the points of PCPNDT. PCPNDT ये जो है एक एक्ट है, एक्ट है। एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों ने बताया। और बेसिकली एक्ट से ज़्यादा इसको अगर हम ये मान के चलें कि एक सामाजिक इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये जो समाज है, समाज व्यक्तियों से बनता, व्यक्ति मिलकर परिवार को बनाते हैं, मल्टीपल परिवार जो है ना क्लस्टर्स बनाते हैं, और ये सारे क्लस्टर मिलकर एक सोसाइटी को जन्म देते हैं। तो ये राइट फ्रॉम होम ये जो हमारे स्टार्ट होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें भी दिखाया गया। जो बच्चों का प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी धारणा, एंड वी शुड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग द फीमेल राइट फ्रॉम आवर होम ओनली। कि कोई भी घर चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, उसके अंदर नेचुरल वाइफ तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उस घर में फीमेल ना हो। फीमेल के घर में रहने से डिसिप्लिन हो जाता,
सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आई एम द फादर ऑफ ए सिंगल डॉटर। बेटी घर में आ जाती है तो उसके बाद में अगर मैं कैजुअली कोई डिस्कशन करना भी चाह रहा हूँ, किसी से टेलीफोन बात करना चाह रहा हूँ, तो हर चीज़ में एक बैलेंस आ जाता है। सारे शब्द जो है ना तोड़ मरोड़ के बोलने के बजाय हम बहुत ही बैलेंस में बोलने लगते हैं, ठीक है ना। और हमें पता नहीं चलता। अभी इन लास्ट डेज आई वॉज वेरी सिक, पर शायद जो है द वे द डॉटर डज एवरीथिंग फॉर अस, कि पापा आप बहुत अब ये रहे, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो बनाती हूँ, एंड दे रियली डू इट एंड दे रियली मीन इट। तो जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर हो के आते हैं। बेटी नहीं होगी तो कल को आपके बेटा कहाँ से होगा? जब बेटी होगी वही बहू बनेगी, वही परिवार में जाएगी। अब क्या दो बेटे मिलके आपको ये जो कंसेप्ट है वो परिवार दे देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो हमें एक समाज के इक्वल बैलेंस के लिए हमें सब चीज़ों की, लाइफ इज ए चेस, दिस सोसाइटी इज ए चेस, हर चीज की अपनी महत्ता है। मदर की अपनी जगह है, डॉटर की अपनी जगह है, सिस्टर की अपनी जगह है, वाइफ की अपनी जगह है, मदर इन लॉ की अपनी जगह है, पेरेंट्स की अपनी जगह है, पेरेंट्स और इन लॉज की अपनी जगह है। जब तक हम इसमें बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगी। पीसी-20 एक्ट में एक बहुत मोटे तौर पे यह है कि जैसा हमें सब बताया गया कि किसी भी तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन की कोशिश भी करना बाय एनी मीन्स, दैट इज नॉट परमिसिबल, दैट इज अगेंस्ट द नॉर्म, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। और इसके लिए जो भी कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पर्सन हो जो इसको चाह रहा है कराना, ऐसा नहीं कि पर्सन इज स्पॉट फ्री। तो मेरा सब डॉक्टर से भी कहना है यहाँ पे यही है कि अगर हमारे नॉलेज में कोई भी ऐसा बंदा आता है कि जो इस काम को चाह रहा है, तो वी शुड रिपोर्ट इट टू द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज so that appropriate action can be taken against the person, and this will spread a message in the society. ये सब प्रोसीजर का हमने बताई दिया आपको कि डिफरेंट आजकल साइंटिफिक हमारा एरा है। साइंटिफिक एरा में हमारे मल्टीपल हमारे टेस्ट हैं, मल्टीपल तरीके की हमारी काउंसलिंग्स हैं, मल्टीपल तरीके की हमारी लैब्स हैं, चाहे वो जेनेटिक लैब हो, चाहे एम्ब्रियोनिक लैब हो, चाहे काउंसलिंग लैब हो, चाहे सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो, चाहे हमारे टिश्यू से टेस्ट हो, चाहे ब्लड से टेस्ट हो, बाई एनी मोडोमी विच कैन determine sex, and we are using it for either for negativity, that is entirely punishable, that is entirely wrong. हाँ, एक दो जगह हम सारे टेस्ट के लिए जा सकते हैं। अगर कोई सीरियस कंजेनाइटल एनोमली के लिए हम लोग डाउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम तो अगेन दैट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ द डॉक्टर। तो बाकायदा लेबल होता, पर हम बिना किसी बात को लेबल करे, हम किसी भी तरीके से किसी भी सोफिस्टिकेटेड या क्रूड मेथड से सेक्स के डिटर्मिनेशन की कोशिश करें तो दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, एंड नॉट ओनली पनिशेबल, इट कम्स अंडर द क्रिमिनल एक्ट। और इसमें नॉन कॉग्निजेंस ये ऑफेंस है, बेल भी इसमें नहीं होती है। उसी चीज़ के लिए हमने लिखा है कि ये जो डिफरेंट जो बातें जो मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग हियर दे आर नॉन मेडिकोज, तो जो बातें मैंने नॉन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बताई हैं वही बातें इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखी हुई हैं। अभी जैसे बताया था और बच्चों ने इतना अच्छा ये प्ले डिपिक्ट किया था कि एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ का टेस्ट कराना चाह रहा था, ही कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर आल्सो, ही कॉन्टेक्टेड, उसकी मदर ने कॉन्टेक्ट किया, किसी सोशल फीमेल को भी कॉन्टेक्ट किया जिसने दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस दिया। ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत कॉमन है। मैं बच्चों के इस थॉट के लिए आई वुड रियली लाइक टू थैंक द चिल्ड्रन फॉर ऑल देयर थॉट प्रोसेसेस। और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली जो है ना, ये अब एक लॉ बनाया है और एक हमने
एक नई तरीके से हमने इस चीज़ को जान लिया, जिसमें हम डिकॉय कस्टमर क्या होता है? डिकॉय कस्टमर यही होता है, और साथ में उनके पीछे अपने लोग लगा दिए, या अगर हमें ऐसे लोगों का मालूम चला, बाकायदा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को नोट कर दिया, हमें ऐसे लोगों का मालूम चला कि जो ये काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने उन डॉक्टर साहब को दिखाया था कि जिन्होंने ये कहा था कि आप इस काम के लिए जो दूसरी वाली जांच, इसके पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे, तो हम इसमें बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करने के बाद में हम यहाँ पे कस्टमर डिकॉय भेजेंगे, यानी फॉल्स कस्टमर हमारे पास पेशेंट भी होगा, उसके साथ में असिस्टेंट भी होगा, सारा पेमेंट भी हम करेंगे और सारा पेमेंट भी गवर्नमेंट से होगा। और जब ये हम सक्सेसफुल ऑपरेशन करके ऐसे लोगों को हम पकड़वा देंगे, हमारा जो है ना केस रजिस्टर हो जाएगा, तो इन टोटलिटी गवर्नमेंट 2 लाख रुपए का जो है ऐसे लोगों को, उस टीम को इनाम देती है, प्रोत्साहन राशि है वो। अच्छा, और वो एक प्रोत्साहन राशि के लिए दिया कहा है, क्योंकि भाई इनाम में या किसी भी चीज़ में आदमी थोड़ा सा ये कर सकता है कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है, पर एनकरेजमेंट राशि वो एक जो है ना रेस्पेक्टेबल वर्ड है उसमें। ये तो डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर की, मैं अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी यहाँ पे उसके करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, कितने पे हमने चेकिंग करी है। और देखिए, अपने गौतम बुद्ध नगर में ये जितने भी मोड हैं, इन सब के थ्रू हमने जो है ना ये हम एक्शन ले चुके हैं, चाहे डिकॉय मोड से हो, चाहे इंफॉर्मेशन मोड से हो, चाहे रैंडम चेकिंग के मोड से हो। और उसी का रीज़न है 2015 में जब मैंने देखना शुरू किया था PCPNDT को, तो उस समय हमारा सेक्स रेशो था 842, यानी 1000 लड़कों के ऊपर हमारे जनपद में मात्र 842 लड़कियां थी। और ये हमारे स्टेट के कुछ ही सबसे पिछड़े हुए कुछ जिलों में इस इंडिकेटर में, हालांकि नोएडा एक बड़ा वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट है, पर इस रेशो में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या थी। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में हम थे, पूरे कंट्री में सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में हम आए, उस प्रदेशों में सबसे ज़्यादा हम हरियाणा। और तो इस पर जो वर्क करना शुरू करा, तो अब आप ये देखिए कि 2015-16 में 842 का सेक्स रेशो बढ़ के हमारा 873 हुआ, और ग्रेजुअली हर साल जो है उसमें यू विल फाइंड ए ग्रेजुअल पॉजिटिव चेंज। और इस समय हमारा सेक्स रेशो 913 है, और स्टेट का पर अभी भी 913 पे भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। वी हैव टू कंटिन्यू आवर एफर्ट्स स्टिल, क्योंकि हमारा जो स्टेट का एवरेज अभी भी 926 है। जो स्टेट का एवरेज है वो 926 है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का 913। हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम स्टेट एवरेज के ऊपर पहुँचे, उसके बाद हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हम किस बात के पढ़े लिखे, किस बात के वाइब्रेंट, कुछ नहीं। ये बिल्डिंग बनाने से हम वाइब्रेंट होगा नो, इन घर बिल्डिंग को कौन चलाएगा? अब एक ही बताइए, यू जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन कि यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैं अगर एक बार एक ब्लंटली ये कह दूँ कि जितने भी हैं सब मेल लोग यहाँ पे रहेंगे, फीमेल लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, अच्छा दे विल नॉट वर्क, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर इंस्टीट्यूशन, तो विल दिस इंस्टीट्यूशन रन? नो। विल दिस सोसाइटी रन? नो। Will the people run? Will the hospital run? Will the school run? Will anything run? Nothing will run. Nothing will run. अब ये डॉक्टर सोनाली बैठी हैं, अगर आपके घर में आपके यहाँ डिलीवरी होनी है तो डॉक्टर सोनाली डिलीवरी कराएंगी, मैं डिलीवरी कराने के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। हर आदमी, तो इसीलिए एक सोसाइटी के अंदर हर वर्ग के अंदर बैलेंस है, हर वर्ग के अंदर एक बैलेंस है। अब ये डिस्ट्रिक्ट की फिगर है कि हमने कितने लोगों को पनिशमेंट दिलाया है, जो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी थे, जो कुछ जैसे डॉक्टर्स यहाँ पर चिन्हित करे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, हम लोग उन्हें डॉक्टर समझते हैं, पर वो बेसिकली डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कराएंगे, जो है ना। तो ये एक बिल्कुल नटशेल में है। और
आज टाइम कम है और डॉक्टर्स की गैदरिंग जब ज़्यादा होती है, 82 लोग तो प्रेजेंटेशन तो मेरे पास तो बहुत है, आई कैन स्पीक अप टिल नाइट, ये पूरा ये किसी पे है तो आपको पढ़ा सकता हूँ, पर इट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। तो आज तो हम इसके बिल्कुल एक कंसेप्चुअल उससे बेसिस हम लेके चले हैं। एंड वंस अगेन बिफोर लिविंग द स्टेज आई वुड लाइक टू थैंक NIET for supporting the mission of the government and specifically the children of the NIET, जिन्होंने इतना खूबसूरत एक्ट को जो है और कितना अच्छे तरीके से उन्होंने डेपिक्ट किया है। शायद अगर मैं कोशिश करता तो मैं नहीं कर पाता इतने अच्छे तरीके से। और बच्चे जब इतना एक्सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे जो हमारी फैकल्टी है, हमारा मैनेजमेंट है, उनके अनटायरिंग एफर्ट्स रहते हैं। तो मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। मैं अपने सीनियर डॉक्टर्स को धन्यवाद दूंगा जो कि अपना वैल्यूएबल टाइम निकल के आए हैं। अपने आप को और अपने कलीग ऑफिसर्स को मैं किसी को धन्यवाद दे दूंगा क्योंकि वी आर ए पार्ट ऑफ ऑन ड्यूटी मिशन जो है ना। पर ये कि मैं आप लोगों को जरूर, आप लोग अपना काम छोड़ कर आए। माई वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। If anybody has very important information with us. Now I would invite Dr. Sonali, Senior Gynecologist and Secretary IMA Greater Noida to the podium to please share her views on the issue in question. Please come. It's such a wrong thing to know that we are conducting a session regarding womenhood action against women violences and the children. एक्चुअली हमको ये सब चीज़ों की करने की, अभी श्री सर ने इतना डिटेल में बताया PCP NDT एक्ट। आई वुड गो a step back behind it. Why actually we want to have a law to protect women and the female feticide? हमारे समाज में ऐसा क्या चल रहा है कि स्त्रियों का, लड़की के जन्म को एक नेगेटिव इम्पैक्ट लिया जाता है या उसको एक तरह से अभिशापित माना जाता है। कहीं ना कहीं हम सबको मिलके, वी आर लर्निंग पीपल, एजुकेटेड पीपल, हम लोग का एक दायित्व बनता है कि हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ा लिखा के इतना सशक्त कर दें, इतना स्वावलंबी कर दें, सेल्फ डिपेंडेंट कर दें कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें और वो अपने समाज और सोसाइटी को लीड कर सके। दे शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन द सोसाइटी, रादर दे शुड बी अ लीडर ऑन द सोसाइटी। सो ऑल आर न्यू कमिंग गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स ओवर देयर, they should take a leading step to lead the country, to give some inputs to our society. And secondly, नारी को एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अगर मैं आपको एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब फीमेल चाइल्ड होती है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेटर देन अ मेल चाइल्ड। दिस इज अ साइंटिफिक एविडेंस व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। तो देखा जाए तो नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, नारी बाय बर्थ ही सशक्त है। What we really demand from a society, please give us equal opportunity to express ourselves, give us equal chances for study, give us equal chances to express what we really want out of us. So that is law के बारे में, एक रैंडम चेक के बारे में एंड फेक पेशेंट बन के जो एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस किया। हम सब डॉक्टर्स ने एक बहुत यूनाइटेडली सर के अंडर सुपरविजन में प्रण लिया है that we will never diagnose any pregnancy to be a female child or not, and that is something I'm doing ultrasound since 2000. तब तक यूपी में ये लॉ इतने अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बट इट वॉज माई स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट दैट आई विल नॉट डायग्नोज। मैं मेरे पेरेंट्स की दूसरी डॉटर हूँ, मेरे फादर डिफेंस में थे, मेरे फादर ने कोई मुझे जांच नहीं कराया, मुझे अबॉर्ट नहीं कराया, बल्कि मेरे को बेस्ट एजुकेशन देके उस लेवल तक लेके गए कि आज मैं कितने लोगों को आगे लीड कर सकती हूँ, एक एग्जाम्पल बन सकता है, उनको एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को वो एजुकेशन दें, ना कि उनको हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक अभिशाप मान के उनके बारे में, जैसे हमने अभी एक लघु नाटक में देखा था कि वो माथा पीट रहा था कि फिर बेटी होगी, ये करके उसको एक पूरी फैमिली में एक नेगेटिविज्म आ जाता है। आपको चांस लेना है, उनको एजुकेट करना है, एंड देन यू सी हाउ वीमेन आर लीडिंग द वर्ल्ड नाउअडेज। गिवन द स्मॉलर अपॉर्चुनिटीज, they are more capable of proving themselves. Just give them a chance to prove. That is a request and a humble request to everybody. Thank you.
District Probation Officer, Gautam Budh Nagar, to please share his views on the occasion. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को मेरा नमस्कार। हमारा जो ये कार्यक्रम था बहुत संक्षिप्त था, लेकिन हम जब भी कोई न्यूज़पेपर देखते हैं तो कहीं न कहीं समाज के किसी स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध, बच्चियों के विरुद्ध ऐसे अपराध कारित हुए हमको मिल जाते हैं जो सोचने पर विवश कर देते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। अभी हाथरस की घटना हुई, उसके बाद फिर कुछ जगहों पे और फिर इस तरीके की घटनाएं हुई। सरकार भी काम कर रही है, समाज भी इस दिशा में काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, लेकिन अगर इन जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनको अगर देखें तो स्पष्ट है कि ये एक सामाजिक बुराई है। जब हम लोग 20 साल पहले जब पढ़ा करते थे तो ये था कि घटनाएं इतनी नहीं होती थी। आज मीडिया इतना सशक्त है, सभी के हाथों में स्मार्टफोन है जिनसे सूचनाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है, जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब 20 साल पहले हम लोग पढ़ते थे तो ये चीज़ था कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, जागरूक होंगे लोग, ये सारी चीज़ें कम होंगी, घट जाएंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा हुआ कि आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया। हम लोग टीवी, दूरदर्शन चलता था, डीडी न्यूज़ वगैरह, डीडी चैनल चलते थे, आज बहुत सारे चैनल चलते हैं। उन चैनलों पे या मोबाइल पे जितनी कहिए कि एडवर्टीजमेंट या प्रचार है, जो भी मैटर है, सभी में सिर्फ एक चीज़ दिखाया जाता है कि महिलाओं को किस प्रकार एक वस्तु बना लिया है, प्रोडक्ट बना दिया गया है। कोई प्रचार आएगा उसमें महिलाओं को जरूर रखा जाएगा। इसके बाद ये सारी घटनाएं हम लोगों के विचार को प्रभावित करती हैं। होता क्या है, मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारे जो हम देखेंगे, जो हम विचार करेंगे, उससे हमारे व्यवहार हो जाएंगे। व्यवहार जो है वो आगे हैबिट्स में बदल जाएंगे, हैबिट्स जो है वो कल्चर में आ जाएंगे, कल्चर ही बन गया है आजकल। ये जो घटनाएं हो रही हैं, आज जो यूपी सरकार की जो मंशा है वो यही है कि समाज में एक सोच विकसित की जाए, एक सकारात्मक सोच विकसित की जाए कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो एक सोच बदल के ही उसे रोका जा सकता है। कि जो उपभोक्तावादी जो हमारी संस्कृति है उस पर कुछ हद तक नियंत्रण लगे, हम उस ढंग से व्यवहार करें, अपना एक संयमित व्यवहार करें। एक महिला है, बच्ची है, उसको सम्मान देखें, गांव घर की बेटी को भी अपनी बेटी जैसा ही मान सम्मान दें। इन सब सोच को लेकर ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अतिरिक्त जो महिलाओं से संबंधित महिलाओं के अधिकार से संबंधित जो कानून है, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम समाज में हर तबके तक, हर महिला, हर व्यक्ति तक ले जाएं, ये सरकार की मंशा है। इसी मंशा को हम लोग जो है व्यवहार में लाने के लिए ये सब कार्यशालाएँ हैं, गोष्ठियाँ या जनसंपर्क कर रहे हैं। पुलिस विभाग के द्वारा अपनी जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इन सब का उद्देश्य ये है कि समाज में एक सकारात्मक विचार महिलाओं और बच्चियों के प्रति लाया जाए और समाज को एक सही दिशा दी जाए, एक विचार दिया जाए जिससे ये सब घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। थैंक यू। लड़कियों के बारे में बस मुझे 2 लाइनें बोली हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें हुनर अपना मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। लड़कियों, आपने इतना बेहतरीन तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि आपने समाज की धारणा को बदल के रख दिया है। यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मिसपरसेप्शन है। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करने आज यहाँ नहीं खड़े हुए हैं, हम
फीमेल इंफेंटिसाइड की बात करने के लिए यहाँ नहीं खड़े हुए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो विजन है, जो ध्येय है, नारी शक्ति, नारी सुरक्षा और नारियों का सम्मान। नारी हमेशा से शक्ति का पर्याय रही है। जितने भी पढ़े लिखे लोग, सभी यहाँ पढ़े लिखे ही हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि संस्कृत में एक श्लोक है जो बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया है। पता नहीं आज की जनरेशन क्यों नहीं सीख पाई, क्योंकि हमने उनसे संस्कृत ही छीन लिया है। तो वो शब्द और वो भाषाएं उन्हें कैसे सिखाई जाए? यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। हमसे हमारी भाषा छीनी गई, हमसे हमारा कल्चर छीना गया, हमसे हमारा साहित्य छीना गया, हमसे हमारा धर्म छीना गया, हमसे हमारे संस्कार छीने गए। उसके बाद ब्लेम ये कि आप नारियों का सम्मान नहीं करते। हमने गार्गी को सम्मान दिया, हमने अपाला को सम्मान दिया, हमने घोषा को सम्मान दिया, हमने माता सीता को पूजा, हमने नौ दुर्गाओं को पूजा। बाकी सब बात तो छोड़िए, एक नवजात बच्ची घर में गोदी में होती है, मम्मी अभी भी कहती हैं बेटा कन्या के पैर छू के निकलो, शुभ होगा। और ये हमें सिखाया जा रहा है कि हम नारियों का सम्मान नहीं करते। सोचना यह है कि नारियों के प्रति ये असम्मान की भावना आई कहाँ से? हम नारियों को इतना असम्मान क्यों देने लगे? नारियों के प्रति हमारे मन में जो ये विद्रूप सोच है, वो सोच आई कहाँ से? हमें डॉक्टर साहब लोगों ने, हमारे टीचरों ने सिखाया है बचपन से ही कि जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। हमारा खान पान जैसा होता है, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। खाने की चीजें, डॉक्टर लोग रिस्पेक्टेड बैठे हैं यहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना। एक होता है फूड विद इमोशंस, एक होता है फूड विदाउट इमोशंस। जिन फूड्स में इमोशंस नहीं होते वो फूड हमें इम्पैक्ट नहीं करते। हमने आम खाया वो शैलेन बन गया, हमने इमली खाई वो भी शैलेन बन गया, हमने संतरा बनाना सब कुछ खाया वो शैलेन बन गया। लेकिन हमने बकरा और भैंसा खाया वो शैलेन नहीं बना। हमने सुअर खाया वो शैलेन नहीं बना। हमने बैल खाया वो शैलेन। उसकी अपनी इमोशंस हैं और वो इमोशंस एक मीट के माध्यम से हमारे शरीर में जाएंगी, पिघलेंगी, खून में आएंगी, खून से हमारे दिमाग में आएंगी। तो हमारा दिमाग इंसानों की तरह कैसे सोचेगा? मेरी पत्नी से अक्सर मेरी बहस होती है। मैं गांव का कंजर्वेटिव छोकरा और शहर की निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा की हुई कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बहस होती है, खाने पीने पर होती है। तो अक्सर वो कहती है कि समाज में इतना व्यभिचार क्यों बढ़ गया है? हमने कहा कि हमारी सोच में परिवर्तन आया है। कहना बड़ा करते हैं, पश्चिमी सोसाइटी जो है बहुत ही मॉडर्न है, उसकी सोच बहुत अच्छी है। हमने कहा कि जितना व्यभिचार आया है सब उन्हीं के द्वारा इम्पार्ट किया गया है। सर, उस लॉर्ड मैकाले की जो एक शिक्षा नीति थी जिसने हमसे हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे मोरल वैल्यूज, यहाँ तक कि हमारा धर्म छीन लिया। आर्टिकल 30A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ा ही नहीं सकते। आप हमें कहते हो कि संस्कारित बनो, आपने छीन लिया सर, आपने प्रॉफिट कर दिया। हम बच्चों को नैतिक शिक्षा दे ही नहीं सकते। क्यों? आप कहेंगे तो धार्मिक शिक्षा है, बाकी सबको आपने परमिट कर रखा है कि पढ़ाइए, आपने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन चीजें खा के हमारे थॉट्स नॉन वेजिटेरियन नहीं हो जाएंगे? सुधारना है तो इस मस्तिष्क को सुधारिए। अभी सोनी साहब ने कहा ना कि जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। हमारी सोच कुत्सित हो गई है, हमारी सोच को विकृत कर दिया गया है। हमें सबसे ज्यादा काम अपनी सोच पे करना है, जिसपे हम लोग का इन्वेस्टमेंट है शून्य। मैं बैठ के किताबें पढ़ रहा होता हूँ, मेरे मित्र मजाक उड़ाते हैं, यार तुम दकिया नुसी सोच वाले अभी भी किताबों पे बैठे हुए हो। आज देखो दुनिया मोबाइल पे और टैब पे और नोटबुक पे पढ़ पढ़ के कहाँ तक पहुँच गई है। हमने तुम्हें वो जहाँ तक पहुँची हुई लगती है ना, वहाँ तक पहुँची नहीं, वो वहाँ तक गिर चुकी है। और मित्रों, बहस के घर में ये होता है कि हम क्यों पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण ना करें। कतई बुरा नहीं है, खुद कीजिए। लेकिन मित्रों, दुनिया में सबसे चमकदार चीज सूरज होती है और जैसे ही वह पश्चिम में ढलता है डूब जाता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर सूरज जैसी चमकदार चीज पश्चिम में ढल के डूबती है तो फिर हम जैसे हाड़ मास के इंसान की क्या वैल्यू यार। हम कतई नहीं कहते उनकी संस्कृति बुरी है, इतनी अच्छी होती तो भगवान हमें भी वहीं पैदा करता। पैदा होना हमारी चॉइस नहीं है और पैदा होने पे सबसे ज्यादा इफेक्ट वहाँ की ज्योग्राफी का पड़ता है। हम हिंदुस्तान में पैदा किए, अरे भाई हिंदुस्तान ना भी हमने नहीं लिया, हम तो हिंदुस्तान कभी थे ही नहीं। हम तो भारतवर्ष थे, आर्यवर्त थे, जम्मू द्वीप थे, भारत खंड थे। क्यों हमारा नेम चेंज करके हमको हिंदुस्तान कह दिया गया? इसलिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही था। आप आए, आपने हमारे ऊपर आक्रमण किया, आपको सिंधुस्तान बोलना था, आप साको हा उच्चारित
करते हो, जिसको हिंदुस्तान कह दिया, जितने लोग यहाँ रहते हैं वो हिंदू हो गए। आई एम सॉरी, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं सनातनी हूँ जो अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल तक चलेगा। हमें सनातन बने रहने दीजिए, हमें हिंदू होने का कतई शौक नहीं है। ये जो हिंदू आइडियोलॉजी है, जो हिंदू नाम का अब्यूज लोगों ने जनरेट कर लिया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमें सब पढ़ाया गया है, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख में कहता है कियंचुधम में, सोचिए अशोक जैसा बुद्धिमान राजा पूछता है स्वयं से कि धर्म क्या है, और कहता है दया दाने शुचिता अपार निस्वे इयंचुधम में। दया धर्म है, सच बोलना धर्म है, दूसरे के धर्म की अभिवृद्धि धर्म है। धारते इति धर्मा से यही तो पढ़ाया है, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। और मित्रों, नारियों का सम्मान हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं हो सकता है? बेकार की बात है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष दारुण नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जब प्रलय आई तो इकलौते मनु ही बचे थे, उनके पास कोई टूल नहीं था, कोई एपरेटस नहीं था, इस धरती का निर्माण वो फिर से कर सके। तो जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे उनको पता है कि श्रद्धा और इला नाम की दो देवियां कहीं से पैदा करके उतारी गई थी, जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सर कंसेप्चुअल चेंज देखिएगा, उनके यहाँ ईव टीजिंग है, एक वर्ड है ना ईव टीजिंग, कभी सोचने की कोशिश की है व्हाई ईव टीजिंग? एडम्स और ईव थे, वहां पे एक पेड़ था, पेड़ में एक एप्पल टाइप का वो फल था, और उस एक फल के एक बाइट को खाने की गलती जो ईव ने की थी, उसके लिए उनको आज तक कहा जा रहा है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन 712 ईस्वी के बाद जो हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअल चेंजेज आए, मित्रों आपको पता है ना, 712 ईस्वी के पहले पर्दा प्रथा का एक भी एग्जाम्पल हमारे देश में नहीं मिलता। मिलता हो कोई बता दे। हमारे यहाँ महिलाएं कभी पर्दा नहीं करती थी, कभी घूंघट नहीं पड़ती थी। बट इफ यू आर फीलिंग इनसिक्योर, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तब घूंघट आया, तब पर्दे आए, और तब अपने आप को छुपाने की परिपाटियां आई, और तब फीमेल इन्फर्टिसाइड आया। लड़की पैदा हुई है, कहती राजस्थान में कहावत थी, बारात आई है तो बाहर से आवाज आती थी विदा कर दो, और वहीं गला घोट के मार डाला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी बेटी घर से बाहर निकलेगी तो सुरक्षित नहीं है। और आप क्या बात करते हैं सर, 5 बहनें हैं मेरे, पांचों एक से एक बेहतरीन पोस्ट पे हैं। मैं तो अपने घर में कभी वैल्यू नहीं पाया, मेरे घर में सिर्फ मेरी बहनों की सुनी जाती रही। पापा को लोग कोसते रहे, 5-5 बेटियां लेके क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पूछ के थोड़ी पैदा किया, तो मेरी बेटियां हैं, मेरे रास्ते चलेंगी। और आज 5 की 5 भारत के, मेरी बहन यूएन पीस कीपिंग मिशन में काम कर रही है, मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने क्या किया, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा, शिक्षित किया। और हमारे यहाँ वास्तव में महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है। जहाँ नहीं है वहाँ करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब तैयार होंगे तो बीच में हमारा धर्म आएगा और वहीं पे हमें सांप्रदायिक कह के अलग थलग कर दिया जाएगा। कि आप बाहर चलिए, आप देखिए अनुष्ठी बातें करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेन वॉश करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि सम्मान करना है तो सिर्फ इस पोडियम और डाइस तक नहीं, अपने निजी जीवन में भी उनका सम्मान कीजिए। आप योगी के बारे में बात करेंगे, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करेंगे। मैं नेता तो हूँ नहीं, मैं एक ऑफिसर हूँ, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं। उनके द्वारा सोची गई चीज फुली इम्प्लीमेंट करना ही हम लोग का दायित्व है। और उन्होंने इस शारदीय नवरात्र से लेकर वासंतिक नवरात्र तक इस मिशन शक्ति को लॉन्च किया है। बड़े लोग की सोच अपनी अलग होती है सर, उन्होंने सोच के ही इस बीच के पीरियड को चुना होगा। हम सब उनका साथ दें। और मैं आपसे कहता हूं कि दूसरों के दर्द को सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करना सीखिए। महिलाओं में दर्द होता है, मैं आपको बताऊं, जो वो बच्ची पेट में रहती है, अभी यहाँ बच्चियों का प्रेजेंटेशन था तो मेरे दिमाग में चल रहा था। आप सोचिएगा, मेरी पत्नी जब पहली बार गर्भवती हुई, उसकी 5 बुआएं ये सोच रही थी कि मुझे भतीजा होगा, उसकी नानी सोच रही थी कि मुझे पोता होगा, उसकी दादी सोच रही थी कि मुझे नाती होगा, उसकी माँ सोच रही थी कि उन्हें बेटा होगा। सिर्फ मैं और मेरे पिता भी सोच रहे थे कि नहीं यार मुझे एक लड़की चाहिए। एक तरफ 10 महिलाएं जिन्हें पोता, बेटा और भतीजा चाहिए, एक तरफ 2 पुरुष जो सोच रहे थे कि हमें एक बेटी चाहिए। अब आपको पता है सर, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराने से डॉक्टर को मना कर दिया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा क्यों? हमने कहा मुझे जानना ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, मुझे तो एक अच्छी सी बेटी चाहिए। तब सर देखिए, उन डॉक्टर साहब की बेवकूफ़ी पे मैं आज तक गुस्सा हूँ। उनका सेंटेंस था अल्ट्रासाउंड के बाद, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी गर्ल यू विल बी मोर हैप्पी। यार आप एक बेवकूफ से बात कर रहे हो क्या?
मैं क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर था, उन्होंने सीधे सीधे बता दिया था कि आपके पेट में लड़का है। आप सर बताइए जैन साहब, क्या ये उनका एक्ट सही था? नहीं, बट मैंने डिस्कस नहीं किया। सुनिए कि डॉक्टर मैडम्स, मेरी वाइफ जब बाहर निकली ओटी से तो उनके वर्ड सुनिएगा, सुनिए फिर बेटा हुआ है ना? हमने कहा यस। इतना हम लोग एक बेटी चाह रहे थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, जिस घर में बेटी नहीं रहती ना, बच्चे वहाँ के संस्कार सीख ही नहीं पाते। जिस कॉलेज में लड़कियां नहीं रहती ना, लड़के हमेशा उद्दंड रहते हैं। और जिस ऑफिस में एक लेडी वर्कर नहीं रहती है, आप ऑफिस की गपशप तो आप लोग समझते ही होंगे कितनी भयंकर भयंकर होती है, बट एक लेडी जैसे ही आती है हम सब संयमित हो जाते हैं। तो अगर एक लेडी के आ जाने पर हम सब संयमित हो जाते हैं तो समाज क्यों नहीं हो पा रहा है? बस इस बात को सोचिएगा। और हाँ, अपनी लड़कियों को कुछ सिखाइएगा मत सर, वो सीखी सिखाई पैदा होती है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कभी फीमेल के लिए वर्ड नहीं आता, बिकॉज दे आर बाय बर्थ परफेक्ट। उनमें कोई कमी नहीं होती है। एक बार एक लड़की थी, मैडम, डॉक्टर मैडम सुनिएगा, बहुत अच्छी सी स्टोरी है। उसने शादी करने से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो सब लोगों ने बहुत समझाया, उसके बाद भी वो शादी करने को तैयार नहीं हुई। तो अल्टीमेटली ईश्वर के पास एक बात पहुंची कि ये शादी करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा शादी कर लो, क्योंकि तुम जब भी कोई गलती करोगी तो उस गलती का जिम्मेदार आखिर किसी को तो ठहराओगी। इसी बात से हम अपनी बात खत्म करेंगे मित्रों। हमें I would invite Ms. Harsha Gupta and Ms. Aditi Matu from the Department of Information Technology at NIET for the rendition of a song representing the desire of women to live fearless. Good evening, ladies and gentlemen. I, Aditi Matu, along with Harsha Gupta, assistant professors from IT department, are going to present this very beautiful creation sung by Sona Mohapatra, known as Bake Off. So, I would like to dedicate this song to all the beautiful women out there who are strong, confident inside and outside. Please enjoy. दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव बिछाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला हर आवाज दबंग। देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। देखो आजाद है बहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है बहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे।
लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। थैंक यू सो मच। Professor, Department of English, to please propose a vote of thanks. Thank you, Yusuf sir. On behalf of NIET family and myself, I heartily thank our esteemed guests, Dr. Shirish Jain, Mr. Atul Soni, Dr. Pradeep Singh, Mr. Shailendra Bahadur Singh, Dr. Sonali, Ms. Uma Khanna, and all the other doctors and esteemed guests from government who are here. And I would thank all of you who have taken out time from your busy schedules and have been with us on the campus and helping us to join hands with UP government in spreading awareness and letting us be a part of Mission Shakti. I cannot thank enough the management of NIET, who have been a continuous source of inspiration and who are the guiding force to do every task in hand efficiently and successfully under their wings. I would heartily thank Director General Mr. Soneja and Director Dr. Kapse to allow us to work free-handed on the campus, on the campaign. A special thanks to Director Project and Planning Dr. Pachauri for giving us an extended help in starting this campaign smoothly. I want to thank Director Pharmacy Dr. Majumdar and all the heads of the department, especially Dr. Ranjana Rani Gupta, Dr. M. Resham, Dr. Rashmi Mishra, Dr. Kumud Saxena, Dr. Anjali Gupta, Dr. Rupa Majumdar, and every faculty and staff member to extend their generous help and support in the implementation and successful completion of this mission. I would congratulate and thank Ms. Kanika Jindal, Dr. Priyanka Chandani, Mr. Sanjay Maurya, and their technical team for untiringly helping us by taking care of all the technical aspects of the campaign. I would thank Mr. Sanjeev Gupta and his entire team for taking care of all the logistics of the campaign. My sincere thanks to Dr. Naz for keeping faith in me and my team by assigning the responsibility of the entire 9-day event to us and allowing us to prove our capabilities in handling the task efficiently. I want to thank the Master of Ceremony, Dr. Yusuf Mehendi, for beautifully handling today's event. At the end, I would like to thank each and every person who has been directly or indirectly involved in the campus and making it a success story for us. Thank you, everyone. Thank you. उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ